mythology is the art of learning philosophy. It is Through the way how to through live a life, story you yes, learn yeah, philosophies, values. and philosophies is essentially the art of learning how to live. Now it cannot give you answers. It gives you the ability to find answers. That is the point of philosophy. कि ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई आगे आपको कहेगा कि आप ये करो और अपना दिमाग इस्तेमाल मत करो. हमारा तरीका, इंडियन स्क्रिप्चर्स का तरीका हरदम ये रहा है कि आप इसके बारे में सोचो, अपनी काबिलियत बढ़ाओ और फिर आप खुद अपने डिसीजन लो, खुद निर्णय करो कि भाई अगर ये सिचुएशन है तो मुझे क्या करना चाहिए. द पॉइंट ऑफ फिलॉसफी इज टू लर्न हाउ टू लिव, नॉट फॉर गॉड टू टेल अस हाउ टू लिव. दैट्स नॉट द इंडियन वे. In the Bhagavad Gita, in the 18th Adhyay, Lord Krishna tells Arjun that I have given you knowledge most profound. Now your task is to think about it and do what you think is right. भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि मैंने तुम्हें इतना ज्ञान दिया है, ये सब सिखाया है, लेकिन इसके बाद तुम्हारा दायित्व ये है कि तुम अपना दिमाग खुद इस्तेमाल करो और खुद निर्णय करो, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हें ही भुगतने हैं. So you have to decide. God will not tell you what to do. You have to decide. That's the Indian way. So doesn't this bring us to a certain paradox? While mythology guides us in a direction where there is no distinction between good or bad, right? We are told you take your own decisions. Everything is karma. You have to do your job. You have to do your task and leave for thinking about good and bad. And whereas most of the stories that are glorified, when we look at stories of divinity or of gods, good wins over evil, or the villain is slayed. So there is some kind of an opposing thing between the two ideologies, so, which is a bit confusing. I think the way to look at our Indian philosophies is not to see it from the paradigm of good and evil. That is actually a Western concept that we have taken in modern India. In ancient times, it was dharma and adharma. Adharma is not evil, and dharma is not religion. Dharma is, the root of the word dharma is dhru. That which binds, that which holds the universe together, that which is in balance. And adharma is imbalance. Correct? Is there a translation for the English word evil in ancient Sanskrit? Is anyone aware? The Sanskrit that we speak today is classical Sanskrit. Ancient Sanskrit was Vedic Sanskrit. Is there a translation for the English word evil in Vedic Sanskrit? कोई अनुवाद है अंग्रेजी शब्द evil का Vedic Sanskrit में? नहीं है. The concept didn't exist, so the word didn't exist. Is there a translation for the English word blasphemy? You know what blasphemy means, right? जब आप भगवान के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, भगवान की मतलब निंदा कर रहे हैं, उनको क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बहुत गलत काम होता है अपेरेंटली. तो अंग्रेजी शब्द ब्लास्फेमी का वैदिक संस्कृत में कुछ अनुवाद है क्या? नहीं है. कॉन्सेप्ट ही नहीं था तो शब्द ही नहीं था. द एंटायर कॉन्सेप्ट वाज यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू क्वेश्चन गॉड एज वेल, एंड देयर इज नो गुड और इविल, देयर इज धर्मा एंड अधर्मा, एंड यू विल डिसाइड व्हाट इज धर्मा फॉर यू. जैसे वी आर ऑल नॉर्मल इंडियन सिटीजन्स, तो फॉर अस वायलेंस इज अधर्मा, मारपीट अधर्म है हम सबके लिए. लेकिन अगर सीमा पर कोई सैनिक तैनात है तो उसके लिए हिंसा करना धर्म है, क्योंकि वो देश की रक्षा कर रहा है. अगर वो मैं महात्मा गांधी की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन अगर सीमा पर जो सैनिक है अगर वो कह दे कि भैया मैं महात्मा गांधी बन जाऊंगा और पाकिस्तान से जो दहशतगर्द जो आ रहे हैं मैं उनको आने दूंगा, कुछ करूंगा नहीं, तो वो अपना धर्म कर रहा है कि अधर्म कर रहा है? क्योंकि उसका धर्म क्या है? उसका धर्म है देश की रक्षा करना, जिसके लिए उसे हिंसा करना ही पड़ेगा. लेकिन हम सब सैनिक थोड़ी हैं, तो हमारे लिए हिंसा करना अधर्म है. तो भाई हिंसा गुड है कि इविल है? इज वायलेंस गुड और इविल? डिपेंड्स. आपका क्या धर्म है? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन वे and the modern Western way. The modern Western way is very simplistic. ये करो, अपना दिमाग इस्तेमाल मत करो. क्यों? क्योंकि भगवान ने बोला है. लेकिन इंडिया का तरीका क्या है? भगवान आपको कुछ फलसफे सिखाते हैं, फिर आप निर्णय करिए. आपका स्वधर्म क्या है, आप वो करिए.
क्योंकि जो भी उसके फल हैं आपको ही आएंगे, या ये जन्म में या अगले जन्म में. सो यू विल डिसाइड. और अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप भगवान से भी ऊपर उठ सकते हैं. महाभारत के अंत में मां गंधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था. शी कर्स गॉड, और श्री कृष्ण को वो श्राप स्वीकार करना पड़ा. यू हैव टू एक्सेप्ट इट बिकॉज मां गंधारी's karma was so grand that Lord Krishna had to accept it. That is the Indian way, that you have to take responsibility for your life. You can't say that God told me do this, so I'm doing this. It doesn't work that way. Not in India, which means our scriptures treat you like adults, not like children. अमीश, आज लग रहा है कि भारतीय दर्शन को किसी ने सही अर्थ में समझा है. उसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं. Thank you, sir. ये जो मिथ्या शब्द है, मैं इस पे बहुत सालों तक कंफ्यूज रहा. मुझे लगा कि अंग्रेजों ने माइथोलॉजी जो है, एक मिथ्या जो कुछ हुआ है हमारे उपनिषदों में, हमारे रामायण में, महाभारत में, उसको माइथोलॉजी करके, यानी जो सही नहीं है, जो फिक्शन है, इस तरह से प्रस्तुत किया. मैंने थोड़ी सी उसके बारे में खोज खबर रिसर्च की है. मिथ्या और मिथ, ये दोनों शब्द हमारे यहाँ संस्कृत के जितने भी साहित्य हैं उनमें बहुतायत से उपयोग में आया है. आपने कहा कि ये ग्रीक से आया है. अगर हमारे, सॉरी बस एक ये कह दूं, हमारे जो प्राचीन जमाने के जो पंडित थे, और 100-150 साल मेरे बाबा जी, मेरे पिताजी के पिताजी भी पंडित थे काशी में, जब वो हमारी कहानियों के बारे में बातचीत करते थे, वो कभी उसे मिथोलॉजी नहीं कहते थे, वो उसे पौराणिक कथा कहते थे. जब मैं हिंदी में बात करता हूँ मैं हरदम पौराणिक कथा कहता हूँ. अंग्रेजी में बात करता हूँ क्योंकि अंग्रेजी में शब्द मिथोलॉजी है, तो मैं मिथोलॉजी बोलता हूँ. लेकिन मिथोलॉजी और मिथ्या अलग अलग है, वही मैं कह रहा था. मिथ्या शब्द को ग्रीक ने भी लिया, मिथ्या शब्द को अंग्रेजी ने भी लिया, और उसको उसी मिथ में ही उपयोग किया है. तो वो अगर माइथोलॉजी बोलते हैं, अंग्रेज तो हमको कई नामों से पुकारते हैं जो कि सही नहीं है, हम मान थोड़ी लेते हैं. तो हम उसको माइथोलॉजी क्यों मानते हैं? हम उसको सही तरीके से माने. ये मेरा कहना. मैं तो यह कहूंगा कि ये चर्चा कि ये मिथोलॉजी है या इतिहास है, मेरे हिसाब से भाई ये महत्वपूर्ण चर्चा नहीं है. महत्वपूर्ण चर्चा ये है कि हम इसे सीख क्या रहे हैं. और इतिहास के मापदंड पे ये लोग बोलते हैं कि भाई कुछ सबूत चाहिए. अब भाई अगर कोई मुझसे पूछे, और इन सब से, जैसे मैंने अभी आपसे सबने कहा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि श्री राम सही में थे क्या प्राचीन जमाने में, मैं कहूँगा हाँ थे, मेरा विश्वास है. कोई कहेगा, अगर कोई पूछेगा कि भाई सबूत लाइए उसका, तो मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है तो मैं मानता हूँ. तो और मैं किसी के ऊपर ये थोपने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ. तो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण चर्चा ये होगा कि हम श्री राम की कहानी से सीख क्या रहे हैं. बल्कि इस अंग्रेजों से अभी डिबेट करने का क्या फायदा, वो तो चले गए, 70 साल हो गया, और उनने बहुत बहुत पाप किए थे हमारे देश में, लेकिन अब तो चले गए, अभी तो सब हमारे हाथ में है. तो उनके बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए. मैं कहूँगा कि हमारे भगवान के कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं, क्या फलसफे सीख सकते हैं, इसके बारे में शायद ज़्यादा चर्चा करना चाहिए. ये मेरा विश्वास है.